So yes, good afternoon to all. Uh, Last topic left in our chapter number 6, that is about DNA fingerprinting. Before we go into the details of DNA fingerprinting, we should get the idea regarding one topic. So let's see that small topic, basic information about satellite DNA, and then we can move on to the major topic called DNA fingerprinting and its utility. The DNA of the organism, it can be divided into two categories. One is chromosomal DNA. Another one is extranuclear DNA. So in an organism, inside the cell, the DNA can lie within the chromosomal part, and small amount of DNA inside the mitochondria and plastids, etc. That refers to the extranuclear DNA, like that. This is the one which is on the chromosome. This DNA is also identified as genomic DNA. This is called as genomic DNA. So I have explained to you the term genomic DNA. The DNA which is there on the chromosomes, a haploid set of chromosomes of a species, is known as genomic DNA of the organism. For example, in a human, the 23 chromosomes which make a haploid set of a species, it has the DNA. That much DNA is termed as human genomic DNA. This genomic DNA, when it is allowed to undergo density-based centrifugation technique, you know the basic idea of the density gradient centrifugation technique, so I'm not going in detail. It has been already taught in Michelson and Stahel's experiment. So as per that, the genomic DNA, when it is centrifuged, then it shows separation of this DNA based on density into two stuffs. One stuff is called as bulk DNA. Another stuff is called repetitive DNA. Almost 99% of the DNA is called as bulk DNA, which is something that is constant in different members of a species. You know that majority part of the DNA is same in all members of a species. So it is that bulk DNA. Other one is less than 0.1% of the DNA, which is something that shows polymorphism, that shows variability within the members of a same species. So that is called as repetitive DNA, like that. I repeat, a genomic DNA can be classified into two categories. Once it is subjected to the density gradient based centrifugation टेक्निक, किसी ह्यूमन का जीनोमिक डीएनए निकाल के फ्रेगमेंटेड करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक जिसको बल्क डीएनए कहते हैं with a higher density, and that would be called as bulk DNA. Remaining one is a repetitive DNA. Bulk DNA
is about that DNA which is constant with respect to the sequences in all members of a same species, जबकि ये वो पार्ट है जो सब में सिमिलर है. Whereas repetitive DNA is that 0.1% DNA which is different in all members of a human species. आपको पता है कि humans में 99.9% DNA is same between all humans. Variation lies in the 0.1% of the sequences. So it is about that particular portion of our genomic DNA. बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे जाते हैं. Human genomic DNA, when subjected to density gradient centrifugation technique, it separates out into bulk DNA and repetitive DNA, which is also identified as the satellite DNA. Proportionately, one is 99.9%, another one is 0.1%. 1% being it should have been how much? 0.1% precisely. So 99.9% is that bulk DNA, 0.1% is the repetitive DNA or a satellite DNA. In a graphical representation, one can see that the major peak is formed by the bulk DNA. DNA fragments of this category, they form a major peak in basically, optical absorbance, amount of UV light absorbed. Based on that, on one axis, amount of UV light absorbed, and another axis, the density of the DNA. So if you see the graph, when such a graph is prepared, so two peaks are obtained. One is called major peak. To that DNA which is responsible for this major peak, it is that bulk DNA. And that DNA which is responsible for formation of a minor peak, उसका स्टडी किया तो पता चला वो DNA कौन सा है? हायर डेंसिटी के साथ वो है रिपीटेटिव DNA. वो है रिपीटेटिव DNA. This is not the amount being reflected in terms of minor and major peak. First of all, please understand. Amount wise, you also know that a very little amount, less than 1%, so actually 0.1% is the amount of repetitive DNA, and 99.9% is the amount of which one? Bulk DNA. Repetitive DNA is the one which shows variations with respect to the sequences within the members of same species. Bulk DNA is the one which is constant, 99.9% constancy in the given genome of all members of a species. So that is the bulk DNA. अब जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है और वो सेपरेट होते हैं और वो पोर्शन को जब हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, particularly UV light over there. So look at this one, optical absorbance on a one axis. How much UV light gets absorbed over there? That is reflected on one side. The other side is about density of the material. So उसका ग्राफ अगर प्रिपेयर किया जाए तो one can see that major peak, more absorbance of light is there by the bulk DNA, and a smaller peak, minor peak, is formed by the other DNA, which is a repetitive DNA. Let us understand in detail what is a repetitive DNA.
Another term given to this repetitive DNA is the satellite DNA. It is also termed as satellite DNA. Where do we see this form of DNA? Number one, it is obtained mainly from centromeric regions of chromosomes. जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेंट्रोमेरिक पार्ट में ये स्पेशल रिपीटेटिव डीएनए होते हैं. टेलोमेरिक एंड्स पे होते हैं, टेलोमियर्स पे. टेलोमियर्स आर द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम. इफ देयर इज वन क्रोमोसोम, these are the 4 telomeres, and in the middle there is one centromere. So other than centromere, it would be also found in the telomeres. Also found in the heterochromatin. In the same chapter, while explaining the compaction of DNA, I have explained that form of chromatin which doesn't get exposed for, or which is more densely packed, gets densely stained, and it is not getting exposed for the expression. It is called as, transcriptionally it is inactive. It is termed as heterochromatin. It is termed as heterochromatin. So these are the sources within our genomic DNA where one can find the repetitive DNA. वैसे तो repetitive DNA कहीं पे भी हो सकता है 23 chromosomes पे, but it is more in amount in areas such as centromeres as well as the telomeres as well as the heterochromatin portion. Second point, what are these satellite DNAs basically? Stretches of the DNA, these are stretches of the DNA with repeated nucleotide sequences. What is so special about this repetitive DNA or a satellite DNA? In them, a particular type of a patch of a nucleotide, it constantly gets repeated over there. Like मैंने आपको explain किया था, कोई एक sequence है जैसे GC, 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 एक particular patch repeat हो रहा है. That would be called as a repetitive DNA. Different density than the bulk DNA. Of course, its density is different from that of the bulk DNA. जहां पे ज्यादा रिपीटेटिवनेस नहीं होती है वो बल्क डीएनए, जो मेजोरिटी ह्यूमंस में सिमिलर है वो बल्क डीएनए, उसका डेंसिटी इसके डेंसिटी से डिफरेंट होता है. And that density is based on the base composition, the length of repeats, and number of. नहीं, wait a minute. हाँ, उसका डेंसिटी डिफरेंट होता है. आगे जाते हैं. These repetitive DNA और satellite DNA, जिसको हम satellite DNA कंसिडर करते हैं, these satellite DNA is divisible into two different forms, microsatellite and mini satellite, based on the base composition, the length of the repeats, and the number of repeated units in this region. अब इमेजिन करो कि ह्यूमन का डीएनए है 2.2 meter long DNA, which is spreaded over 23 chromosomes, carrying 3 into 10 raised to 9 base pair, precisely 3.2 into 10 raised to 9 base pairs. In this DNA, genomic DNA, there are two parts, bulk DNA and satellite DNA. Bulk DNA क्या होता है? So it is that part which is showing constancy in all members of a human species. तो ये repetitive DNA क्या होता है और satellite DNA क्या होता है? It is that part of the human genomic DNA
which shows variability in different members of a human species. ये सैटेलाइट डीएनए और ये रिपीटेटिव डीएनए के क्या फीचर्स है? तो इट इज अवेलेबल इन अ सेंट्रोमियर, telomeres and that of euchromatin parts of the chromosome. 2 इसमें क्या स्पेशल होता है इस रीजन्स में? सो यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट बैंड्स में स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विथ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इस पार्ट्स में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बहुत ज्यादा रिपीट होती है, ऐसे पार्ट्स को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और इस पार्ट्स की इस डीएनए का, इस जीनोमिक डीएनए का ये पोर्शन जो 1% है, उसका डेंसिटी डिफरेंट होता है रिमेनिंग डीएनए से, विच इज कॉल्ड बल्क डीएनए। अच्छा, ये सैटेलाइट डीएनए को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट एरियाज एंड दूसरे कहते हैं मिनी सैटेलाइट एरिया। बेस्ड ऑन व्हाट दिस क्लासिफिकेशन इज डन? बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ दैट रीजन विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस, कौन से बेसिस ज्यादा है वहां पे, ए सी जी टी, कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा है वहां पे, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा लेंथ ऑफ रिपीट, जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसकी लेंथ, जैसे ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी, अगर ऐसा देखते हो तो दिस इज समथिंग वेयर ट्रायो ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज गेटिंग रिपीटेड। सो ये जो रिपीटेटिव पोर्शन है उसका लेंथ, और तीसरा once it is repeated in some patch of DNA, how many times it is repeated. So number of repeats, number of time the given repeat is present over there. Based on these three, it has been divided into mini satellite and micro satellite. बोलिए, यहां तक क्लियर? ह्यूमन जीनोमिक डीएनए के दो पार्ट, बल्क डीएनए 99.9% डीएनए जो सब में सेम होता है, सैटेलाइट डीएनए 0.1% लेस देन दैट जो सब में डिफरेंट होता है। किस पोर्शंस में वो प्रेजेंट होता है? तो सेंट्रोमियर, टीलोमियर और हेटेरोक्रोमैटिन में। क्या उसकी स्पेशलिटी है? तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस रिपीट होते रहते हैं। उसकी डेंसिटी क्या ऐसी होती है? तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ बल्क डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए के कौन से टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक रिपीट्स को कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स, दूसरी रिपीट्स को कहते हैं मिनी सैटेलाइट्स। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है तीन फीचर्स पे। नंबर 1, which kind of bases are composing the given sequence, repetitive sequence. फिर the length of that repetitive sequence with respect to the number of nucleotides, and how many times the sequence is getting repeated over there. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। ए सी जी टी टी जी सी जी सी जी सी सी ए टी। अब देखो रिपीटेटिव पैच ये रहा, जीसीए 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 लाइक दैट। उससे आगे वो रिपीटेशन नहीं, उसके पीछे वो रिपीटेशन नहीं, तो ये रिपीटेटिव पैच था। अच्छा, a repetitive patch had how many nucleotides? 3 in each. How many times this part is getting repeated? 3 times. So in this way, if you try to understand these repetitive parts, they are divided into two categories, microsatellites and mini satellites. Microsatellite is that patch of satellite DNA where the repeated sequences have a length
less than 10 below base pairs over there. It is below 10 base pairs means जो रिपीट हो रही है वो खुद कितने यूनिट कितने न्यूक्लियोटाइड से बनी है, लेस देन 10 बेस पेयर से बना हुआ. Tell me, looking at this, if you can understand, is there any repetitiveness in this DNA? Is there any repetitiveness in this DNA? Is there any repetitiveness in this DNA? Look at this patch, shows repetitiveness. किस टाइप की repetitiveness है? It's a pair of nucleotides, TA, 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 TA. How many times it is getting replicated? 4 times. How many times it is getting replicated? 4 times. इसका मीनिंग रिपीटेड सीक्वेंस की लेंथ थी लेस देन 10 बेस पेयर. इट वाज लेस देन 10 बेस पेयर. TA, 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 2 बेस पेयर का ही एक रिपीट हो रहा था. हाउ मेनी टाइम्स द रिपीटेशन अकर्ड? तो 4 टाइम्स. अंडरस्टूड? या 5 टाइम्स हो तो ऐसा. सो रिपीटेशन अकर्स फॉर हाउ मेनी टाइम्स? as many as 5 times to 50 times. जहां पे भी ये सीक्वेंस रिपीट होती है वहां पे मिनिमम 5 टाइम्स रहती है या उससे ज्यादा 50 टाइम्स तक जा सकती है. और ऐसे कितने साइट्स है ओवर द 23 क्रोमोसोम्स दैट 2 पॉइंट और 3.2 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए के कितने स्पेसिस है जहां पे ये रिपीटेशन हो रहा है? 2 lakh loci. How many? 2 lakh spots where you see this kind of a sequences which are repeated for at every spot. 2 lakh spots पे spot 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 1 lakh से लेके 2 lakh spot. हर spot पे जो भी सीक्वेंस रिपीट हो रही है वो कितनी बार रिपीट हो रही है? मिनिमम 5 टाइम्स से लेके 50 टाइम्स. और हर एक रिपीटेटिव सीक्वेंस पे कितने बेस पेयर हो सकते हैं? एज मेनी एज 10 बेस पेयर. 1 से लेके 10 बेस पेयर तक रिपीटेशन होता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जी जी टी सी, जी जी टी सी, जी जी टी सी, जी जी. देखो एक तो इसमें रिपीटेटिव यूनिट हैज गॉट 3 न्यूक्लियोटाइड्स. नहीं 4. इट सीम्स या इट हैज गॉट हाउ मेनी? 4 न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट हो रहा है. अपेरेंटली जितना पोर्शन दिखता है उसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है? यहाँ पे तो 3 बार रिपीट हो रहा है ऐसा. On the other hand, you have a mini satellites. यहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंस की लेंथ क्या होती है? जो भी सीक्वेंस रिपीट होते हैं उसकी लेंथ होती है 10 बेस पेयर टू हाउ मच? 60 बेस पेयर. 10 बेस पेयर टू हाउ मच? 60 बेस पेयर. तो इतने न्यूक्लियोटाइड का एक पैच रिपीट होता है. कितनी बार होता है? हम मोर देन 100 टाइम्स. जब भी रिपीट होता है एक साथ 100 से ज्यादा बार उस पोजीशन पे रिपीट हो रहा है. और ऐसी कितनी पोजीशंस है जहां पे ये रिपीट होता है? दे आर मोर देन 10,000. So 10,000 different loci where these sequences are repeated each time. They are repeated over there, a given spot. They are repeated in the number more than 100 times. And each repeat has got as many as 10 base pair to
60 base pair. Up to that it is. Now, for next 10 seconds, I'll wait for your question and doubt. If you have any for micro and mini satellites. फिर से मैं बोल रहा हूं, सैटेलाइट एरियाज डीएनए का वो पोर्शन है जहां पे सीक्वेंसेस में रिपीटेशन होता है. इसके दो कैटेगरीज हैं, माइक्रो सैटेलाइट एरियाज एंड मिनी सैटेलाइट एरियाज विद इन द जीनोम. The difference between the two lies in number of nucleotides which make that repetitive patch, number of times the patch is repeated at the given position, and number of position where such patches are getting repeated. तीन चीजों के बेस पे, रिपीटेटिव पैच की न्यूक्लियोटाइड का नंबर, वो पैच जब भी रिपीट होता है उस पोजीशन पे कितनी बार आता है, तीसरा ऐसा कितनी जगह पे वो रिपीट होता है उसके बेस्ड पे. तीन फैक्टर्स के बेस्ड पे इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स. माइक्रो सैटेलाइट्स वो रिपीटेटिव एरियाज जो रिपीटेटिव सीक्वेंस 10 बेस पेयर से कम होती है, उनमें जो भी पैच रिपीट होता है वो पैच की न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर लेस देन 10 बेस पेयर है. जहां पे भी रिपीट होता है वहां पे कितनी बार रिपीट होता है, एज मेनी एज 5 to 60 टाइम्स. और ऐसा कितनी जगह पे होता है, तो 2 lakh loci within that 23 chromosomes over there. दूसरा, मिनी सैटेलाइट किसको कहते हैं, तो जहां पे रिपीटेड पोर्शन में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स शुड बी 10 base pair to 60 base pair. Once it is over, again it will come. Such a repetition occurs for how many times? As many as 100 times wherever they are found. और ऐसे कितने स्पॉट्स है वहां पे जैसा ये चीज रिपीट हो रही है. So again, more than 1000 loci over the 23 chromosomes. चलिए, question from your side, if there is any. I'm waiting for 1 minute. No? चलो तो आगे जाते हैं. These mini satellites are of different categories. These mini satellites, they are of different categories. One of the category of mini satellite is known as VNTR, variable number tandem repeat. Variable number tandem repeat. अगर कोई पूछे आपको तो क्या लिखोगे regarding VNTR? So full form लिखोगे variable number tandem repeat. कहाँ पे वो कौन से टाइप का डीएनए है, तो कि वो मिनी सैटेलाइट का काइंड ऑफ डीएनए है. Now let me explain the VNTR, variable number tandem repeat. They are one type of mini satellites. They are one type of mini satellites with as many as 10 base pair to 100 base pair, which is very long. They vary in numbers of they vary in the numbers of repeats from individual to individual. And last, they show high degree of polymorphism. Here, constantly one by one people are coming. How to explain this thing? See, I mentioned that mini satellites, those repeat areas where the repeated sequence is having length of 10 to 60 base pairs, one after the other, repetition occurs for more than 100 times, and such patches occur for more than 1000 loci within the 23 chromosome.
इस मिनी सैटेलाइट्स की डिफरेंट वेराइटीज होती है। एक वेराइटी को कहते हैं VNTR, फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। These are one type of mini satellites। ये MCQ में एक बार पूछ लिया है उन्होंने कि VNTRs belong to which category। तो फिर ऑप्शन था मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, बल्क DNA, जीनो, समथिंग एल्स, ऐसा 4 ऑप्शन था। यू हैव टू राइट डाउन मिनी सैटेलाइट। So these are one type of mini satellites where length of the repetitive units, I mean number of base pairs within the repetitive part, 10 base pair to 100 base pair। अच्छा, इनमें एक स्पेशलिटी है, ये जहां भी रिपीट होते हैं, मेरे में रिपीट हो रहे हैं, आप में रिपीट हो रहे हैं, वो स्पॉट पे कंपेयर किया जाए तो मेरे में 80 टाइम्स रिपीट हुए, आप में 85 टाइम्स, तो किसी में 70 टाइम्स, तो किसी में 65 टाइम्स, किसी में 35 टाइम्स। So the number of times the stuff is getting repeated in different individual, it varies from person to person, ऐसा। And it shows high degree of polymorphism, it shows high degree of polymorphism। Human to human इसकी सीक्वेंस में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पता है आपको? जीनोम की किसी भी एक पोजीशन पे अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन में वहां पे उस पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड में वेरिएबिलिटी है अगर, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म फेनोमेनन। सो VNTRs एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और इस VNTR का साइज होता है 0.1 से लेके 20 किलो बेस, 0.1 से लेके 20 किलो बेसिस, उस रेंज में होते हैं VNTR। एक स्पेशल टाइप के मिनी सैटेलाइट विद इन द जीनोम, जो जहां पे भी होते हैं वहां पे जितने टाइम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, रिपीट्स गेटिंग प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर, उसको कहते हैं टेंडम। वेरिएबल नंबर मेरे में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक लोकस पे वो सीक्वेंस कितनी बार आती है, लेट्स से 70 टाइम्स, तो आप में वो कितनी बार आती है 80 टाइम्स, तो किसी और में कितनी बार आ रही है 85 टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस विल बी अवेलेबल, दैट इज अ वेरिएबल कंपोनेंट, दैट इज टर्म्ड एज अ वेरिएबल कंपोनेंट ओवर देयर। तो इसी वजह से इसको कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, रिपीट्स which are present in a tandem manner, एक के बाद एक, for variable number from person to person। एंड विद इन द सीक्वेंस कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो वो भी हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। और ओवरऑल इनकी साइज होती है 0.1 किलो बेस से लेके 20 किलो बेस तक। चलिए, क्वेश्चन अगर है तो आप कोट कर सकते हो। VNTR के बिना नेक्स्ट टॉपिक पता नहीं चलेगा, सो मैं आपको पूछ रहा हूँ, कोई है जिसको VNTR के बारे में नहीं पता चला? वो एक टाइप के मिनी सैटेलाइट्स है, 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स रिपीटेशन होता रहता है उनमें। अरे उतने बेस पेयर की लॉन्ग होते हैं, हर रिपीट में 10 बेस पेयर से लेकर 100 बेस पेयर तक का एक पैच हो सकता है। और वो पैच कितनी बार रिपीट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ऑन डिफरेंट लोकेशंस, उसको VNTR कहते हैं। बोलिए, किसको VNTR का कंसेप्ट क्लियर? Okay, no one is raising question, that means you have no problem. Break for 5 minutes.
break for 5 minutes, and then we will start next topic, DNA fingerprinting. Okay, students, if you are back from the break, we can start the work. See, if you have understood VNTR, then only we can proceed with the DNA fingerprinting. If you have not, then it is very difficult to understand the DNA fingerprinting. So have you understood what is VNTR?
Okay, if you say yes, that means you have understood. Fine. आगे जाते हैं. British scientist Sir Alec Jeffrey, he got the credit for discovering and developing. Discovery is different. Inventing and developing this DNA fingerprinting method. DNA fingerprinting method. इसके दो पार्ट है. एक पार्ट है उसका टेक्निक, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टेक्निक. दूसरा पार्ट है उसका एप्लीकेशन पार्ट. Let us understand the term DNA fingerprinting first, then the technique, and then the application part of it. Every person has a unique fingerprint which can be used as an identity mark for every person. That basic you are aware of, isn't it? Are you aware of the fact that every human has a unique fingerprints which can be used as an identity mark of that person? Like that. Like that, every person has a unique sequence of DNA. Now, unique in which parts? Not in 99.9%. Uniqueness prevails in that 0.1% portion of its genomic DNA. So within the genomic DNA, it's that 0.1% portion of its DNA that if you compare that portion with any other person, there will be some differences in their 0.1% satellite DNA parts of their genomic DNA. Genomic DNA का जो 0.1% satellite DNA part है, there any two human beings will differ, वहां पे वो complete similarity नहीं होगी. So if we compare these two parts, we can make out the two DNA samples belong to same or different person. So DNA of every person shows unique sequence. So just like a fingerprints, it can also be used as the identity mark of a person. So उसको DNA fingerprinting profile कहते हैं. फिंगरप्रिंट टर्म जब आप बोलते हो तो लेमैन को, जो नॉन बायोलॉजिस्ट, उसको भी पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा जो पर्सन से यूनिक हो. इसीलिए उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइलिंग कहते हैं. अच्छा, किसने डेवलप किया था? सर एलेक जेफरी ने. Basically, he was studying some genetic disorder, and while studying that, he came across certain facts which he could observe, and he utilized those facts in establishing technique, the DNA fingerprinting technique. तो ये था उसका डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड इन्वेंशन ऑफ दिस टेक्निक. प्रिंसिपल क्या करना चाहिए? Basically, it is about comparing the DNA sequences of the two samples to find out whether they belong to same people or different people, or whether they belong to two people with close relative or a genetic relationship or no such relationship. So to work out that, you need to work upon the DNA samples and compare their sequences. Logically, you don't need to compare the whole 3 into 10⁹ base pairs, because 99% of that is always going to be same in any two humans. So logically speaking, comparison has to be made of only which part from the entire genomic DNA of the two sample, only which part DNA is to be compared ideally. Are you all listening? Repetitive DNA part of the two, isn't it? वो जो 0.1% सैटेलाइट डीएनए है, उसी को कंपेयर करना चाहिए किसी दो पर्सन में.
बिकॉज जो सेम है उसको कंपेयर करके क्या फायदा, वो 99.9% तो सेम, डिफरेंस किस में है, वो 0.1% में, उसी को कंपेयर कर लो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, उसमें भी VNTRs को कंपेयर किया जाता है, उसमें भी किसको कंपेयर किया जाता है, VNTRs को। सो ह्यूमन का जीनोमिक डीएनए का 0.1% सैटेलाइट डीएनए में से भी, वो जो मिनी सैटेलाइट्स है उसमें से भी VNTR टाइप के जो मिनी सैटेलाइट एरियाज है डीएनए के, सिर्फ उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को कंपेयर किया जाता है, दे आर द वंस विच आर कंपेयर्ड। बॉटम लाइन, VNTR profiles of the two samples, genomic DNA samples, that is done in the DNA fingerprinting. अगर मैच हो गया तो दे बिलोंग टू सेम पर्सन, मिसमैच हो गया तो दे बिलोंग टू टू डिफरेंट पर्सन्स। जैसे ट्विंस में सेम हो सकता है बाय द वे, दो इंडिविजुअल्स का भी। अच्छा, वेरी क्लोज डीएनए प्रोफाइल, VNTR profile, which means the two persons are not same, but they are siblings or genetic relationship prevails between them. जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या फिर सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, लाइक दैट। तो किसी भी दो पर्सन का पूरा डीएनए निकाल के उसके सिर्फ VNTR पोर्शंस को ही कंपेयर किया जाता है, ये है उसका प्रिंसिपल। बोलिए, पता चला क्या? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ पर्सन डीएनए, हमने एक्स पर्सन का डीएनए लिया है, तो उसके जो क्रोमोसोम्स है उसमें लेट्स से कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो लेट्स से कि उसके क्रोमोसोम नंबर 1 के जो टेलोमियर है वहां से हमने VNTR को निकाला है। तो उस पार्ट का जो डीएनए होगा उसमें फिक्स पैचेस होंगे जहां पे रिपीटेटिवनेस होगी। उस पैच पे भी जब आप देखोगे तो द नंबर ऑफ टाइम्स द सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड, किसी में लेट्स से के 15 टाइम्स हुआ है, आप में भी उसी जगह पे सीक्वेंस रिपीटेशन होगा, बट आप में 30 टाइम्स होगा, किसी और में 40 टाइम्स। तो वो वेरिएबिलिटी रहती है। फिर पोजीशन बी पे मेरे में यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस 65 टाइम्स है, आप में वहां पे 30 टाइम्स होगा। फिर पोजीशन सी में, तो हर एक पोजीशन पे, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ पोजीशंस होती है, हर एक पोजीशन पे कितनी बार रिपीटेटिवनेस होती है वो हर पोजीशन पे, हर पर्सन पे यूनिक रहती है। मेरे में ए पोजीशन पे 15 रिपीट्स, बी पोजीशन पे 65 रिपीट्स, सी पोजीशन पे 20 रिपीट्स, डी पोजीशन पे 19 रिपीट्स। आप में हर एक पोजीशन पे ये कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो सकता है। तो दिस मेक्स अवर VNTR पैचेस यूनिक, क्योंकि हर एक का एक की लेंथ डिफरेंट है, बी की लेंथ डिफरेंट है, सी की, डी की, हर एक VNTR पैच की लेंथ डिफरेंट रहती है। सो हमें कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसका VNTRs निकालो और उसको कंपेयर कर दो तो पता चल जाएगा कि दोनों सैंपल एक सोर्स में से है या डिफरेंट सोर्स में है। एंड अगर सिमिलरिटी ज्यादा है उनमें तो दो जो सोर्स है, आर दे क्लोज जेनेटिक रिलेटिव्स और नॉट, वो क्लैरिटी मिल जाएगी। बोलो, मैंने प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या आपको समझ में आ गया? दो पर्सन के VNTR पैचेस को निकाल के कंपेयर करना है, और उस VNTR पैचेस में जो लेंथ ऑफ द पैच होगी वो वेरिएबल रहेगी, क्योंकि किसी में कितनी बार रिपीट हो रहा है, दूसरे में कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो वेरिएशन है पर्सन टू पर्सन। लेट्स से 100 पैचेस है, 100 पॉइंट्स पे पैचेस रिपीट हो रहे हैं,
तो मैं और आप में 15 पैचेस पे हमारे सिमिलर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, बाकी के 85 पैचेस पे हमारे में नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट्स है वहां पे वो वेरिएबल रहती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। रिपीट्स है जो वेरिएबल नंबर में मिलती है एट ईच पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ओवर दैट। चलो प्रिंसिपल क्लियर है, तो मैं टेक्निक के पार्ट में आगे जाता हूं। अच्छा, आपको जो भी सैंपल मिलता है उन सैंपल्स का डीएनए का वीएनटीआर प्रोफाइल प्रिपेयर करना है। वीएनटीआर प्रोफाइल प्रिपेयर करना है, फिर दोनों को कंपेयर करके देखना है कि दोनों का एक सोर्स है या डिफरेंट सोर्स है। एक सोर्स है दैट मींस दैट डीएनए बिलोंग्स टू आइदर ट्विन्स और फ्रॉम अ सेम बॉडी, सेम पर्सन। और वो वीएनटीआर सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बट थोड़ा सिमिलर है, तो फिर दे बिलोंग टू जेनेटिक रिलेशनशिप मेंबर्स कैटेगरी। और टोटली डिफरेंट है तो दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, नो जेनेटिक रिलेशनशिप। तो 3 लेवल की क्लैरिटी मिलती है इससे। इसमें 6 स्टेप्स है, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूं। स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अगर मेरा डीएनए प्रोफाइल चेक करना है तो मेरे बॉडी में से कोई सेल कलेक्ट करेंगे, आपका डीएनए प्रोफाइल चेक करना है तो आपके बॉडी में से कोई सेल कलेक्ट करेंगे। क्राइम साइट पे अगर किसी का क्रिमिनल का अगर डीएनए करना है तो उसके हेयर फॉलिकल्स या उसकी स्किन गिरी हो वहां पे, या उसका ब्लड या उसका सलाइवा या उसका सीमेन या वजाइनल फ्लूइड या बॉडी का कोई पार्ट, कोई भी ऐसा सोर्स हो जिसमें सेल्स अवेलेबल हो और उन सेल्स में से डीएनए ऑब्टेनेबल हो, तो वो बन जाता है हमारा सोर्स सेल। और उसका डीएनए को हम सेल ब्रेक करके आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और फिर पूरा का पूरा डीएनए विदाउट एनी अदर मटेरियल उसको सेपरेट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। दैट वुड बिकम द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। If you have understood, raise, write down yes. If you have understood, not understood, write down no. Step 1 यस आ गया, आगे जाते हैं। स्टेप 2, फिर उस डीएनए को ब्रेक करना है फ्रेगमेंट्स में। आई एम श्योर यू कैन रिकॉल दैट डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, अगर आपको याद हो, सीक्वेंस एनोटेशन में लर्न किया था आपने। किसी भी डीएनए को फ्रेगमेंटेड करना है तो यू गॉट टू यूज द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। शॉर्ट में आरई कहते हैं। प्रोसेस को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ द डीएनए कैरिड आउट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। So you can see that the DNA is getting fragmented. Then comes third technique, which is called as third step, which is called as gel electrophoresis run for DNA fragments. हमें जो DNA fragments मिले हैं उन्हें एक कंटेनर में, जिसमें अगर अगर जेल का लेयर होता है, अगर अगर जेल का एक बेस होता है, उसमें एक लिक्विड को स्प्रेड करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट, और you can say rather इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। the one in which at one end नेगेटिव को क्या कहते हो, कैथोड या एनोड? मैंने पूछा आपको, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हो, कैथोड या एनोड? चलो कैथोड एन, अच्छा, नेगेटिव को कैथोड। फाइन। सो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉइंट
The fragments of DNA, when you keep in this medium, the container, the tray-like container filled with agar-agar gel, over to that there is a liquid medium, and on one end of the container there is a negative electrode, on other end there is a positive electrode, and you can load the DNA fragments towards the negative electrode, because they themselves are carrying which charge? What is the charge on DNA fragments, positive or negative or neutral? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कौन सा चार्ज लगता है? What is the charge carried by the DNA fragments? I have already explained to you. Negative. Can you explain why? What is responsible for its negativeness? Hmm. Pushti is correct. Phosphate group PO43 minus gives it negative charge. अब किसी fragment का negative charge है, and if you let it run in an electric field, it would get attracted towards positive electrode or a negative electrode. Positive. So DNA fragments will start running in this direction. बोलो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, क्या आपको पता चला? एक कंटेनर हो, ट्रे हो, जिसमें जेल लाइक अगर जेल फिल्ड अप हो, फिर उसके ऊपर एक लिक्विड हो, फिर उसके एक एंड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, दूसरे एंड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो, और आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए फ्रेगमेंट्स को रिलीज करेंगे फ्रॉम वन एंड, यू विल रिलीज देम। जनरली कौन से एंड पे से आप रिलीज करेंगे? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड एंड से रिलीज करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट होके कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड, एज पर यू, योर आइडिया, योर सजेशन, because we know that DNA fragments are having negative charge because of phosphate group, so they shall be attracted towards positive electrode. After some time, if you see, you may realize that DNA fragments have migrated किसी का यहाँ तक माइग्रेशन हुआ है फील्ड में, कोई यहाँ तक गया है, कोई इससे आगे गया है, कोई यहाँ तक गया है. See, all of them started their journey at the 0 point, isn't it? Am I right or wrong? This is at time 0 and this is time 20 minutes, for example. तो 0 मिनट पे सभी एक पॉइंट पे थे डीएनए फ्रेगमेंट्स, 20 मिनट्स पे, आई मीन टाइम फ्रेम के बाद, थोड़े टाइम फ्रेम के बाद, can you see the fragments have got separated from each other and have migrated at different distance within the electric field? Can you see that? So they get separated over here. अच्छा, इतना याद रखना, हमने जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स रन करा रहे हैं वो वही वाले हैं जिसमें VNTRs है, याद रखना इतना. VNTR carrying DNA fragments get separated from each other based on their size. Larger the size, lesser the distance covered, lesser the size, larger the distance covered. So इस रूल के बेसिस पे
साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस कवर्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखने का, जिस फ्रेगमेंट का जितना साइज बड़ा उतना वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ टाइम्स वी एन टी आर में जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट्स हो रही है वो वेरिएबल है। कहीं पे 100 टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसकी साइज ज्यादा होगी, कहीं पे वो सीक्वेंस 20 टाइम्स रिपीट हो रही है तो वो फ्रेगमेंट की साइज कम होगी। सो फ्रेगमेंट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट्स अकर आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, तो वो वेरिएबिलिटी की वजह से ये जो फ्रेगमेंट्स है उनका डिफरेंट साइज होता है और उनका रनिंग विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड अलग अलग होती है, तो दे गेट सेपरेटेड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। दिस इज टर्म्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप बोलो तो तीनों पॉइंट्स को अब तक जो पढ़ा है उनको रिवाइज करा दो, स्टेप 1 2 3, और अगर आप ना बोलते हो तो स्टेप 4 पे चले जाते हैं। Step 1, from the source cell is broken up, its DNA is isolated, purified, and then by some special technique from the entire medium it is the one which is extracted out. So सिर्फ ह्यूमन का डीएनए निकल सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए किसी भी लिविंग किसी भी सेल में से निकल सकता है डीएनए, ऐसा याद रख। फिर उस डीएनए को फ्रेगमेंटेड करेंगे बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। फिर उस फ्रेगमेंट्स में से वीएनटीआर वाले फ्रेगमेंट्स जो हमें पता है कि भाई टीलोमियर में है, क्रोमोसोम नंबर दिस 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 के टीलोमियर्स में, तो सिर्फ उनको ही हम आइसोलेट करके रखते हैं। फिर उनका सेंट्रिफिकेशन, उनका माय मिस्टेक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके let electrically charged molecules run, it is called as gel electrophoresis. So first of all we create a tray filled with agar gel and certain other liquid medium in which we create an electric field, by one hand keeping positive charge, another hand keeping negative charge, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड DNA fragments starting their journey from one point, wells present on the cathode side, wells means गड्ढे, तो वहां पे लोड करके रखते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होते ही they start migrating towards the anode. Speed with which the given person's DNA fragments will move within this will be different for different fragments. So एक पैटर्न बन जाएगा उनके माइग्रेशन का ऑन दी जेल मीडियम। बोलिए, यहां तक डाउट नहीं है तो फोर्थ स्टेप पे चले जाएंगे। एक छोटा सा स्टेप किया जाता है, इसलिए मैं इसको 3A और 3B स्टेप में डिवाइड कर देता हूं कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेटेड दिखते हैं आपको, एज यू कैन सी द फ्रेगमेंटेड द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए ओवर देयर, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर उस ट्रे के अंदर मीडियम में अल्कलाइन मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली से क्या होगा? अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने से क्या होगा? ईच फ्रेगमेंट विथ वीएनटीआर, ईच फ्रेगमेंट विथ वीएनटीआर, याद रखो आप लोग, इज सेपरेटेड फ्रॉम I mean each fragment of VN or DNA with VNDR
its two strands get separated because hydrogen bonds get broken in an alkaline medium. अल्कलाइन मीडियम में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होके हर डीएनए फ्रेगमेंट दो में सेपरेट हो गया. तो आप देखो, केयरफुली ऑब्जर्व करो. कैन यू सी ईच फ्रेगमेंट each fragment is having two strands now separated because their hydrogen bonds are broken. Can you make out that? Tell me, using what you can break the hydrogen bonds in each fragment of DNA? Using which chemical you can manage this thing? Alkaline medium. It breaks which bonds? Exactly, hydrogen bonds. So आप इमेजिन करें कि कल्चर नहीं, वो अगर जेल मीडियम में डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए हैं और each one is having two strands separated with broken hydrogen bonds because of alkaline medium. आगे जाते हैं. Step number 4, transfer of those DNA strands. For each fragment, the two separated DNA strands, they are to be transferred on nylon cloth, or else you may call it as you may use another one, nitrocellulose paper. This transfer is called as southern hybridization. उसको southern hybridization के लिए रेडी किया जाता है. ऐसा इस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम आप देखिए मीडियम में ये डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेटेड है, उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज का पेपर या नाइलॉन का क्लॉथ रख के प्रेस करना है. तो ये नाइलॉन का पेपर है या नाइट्रोसेल्युलोज का पेपर है, वो इसके ऊपर रखा जाएगा. किसके ऊपर रखा जाएगा? वो जेल मीडियम के ऊपर. So that all the DNA fragments on the gel medium get transferred to that nylon cloth which is pressed on it, or else to the nitrocellulose paper. इसको southern hybridization कहते हैं. बोलिए, step 4 clear? स्टेप 1 में सेल ब्रेक करके डीएनए को आइसोलेट करके एक्सट्रैक्ट करो. स्टेप 2 में डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंटेड करो. फिर वीएनटीआर कैरिंग फ्रेगमेंट्स को स्टेप 3 में इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराओ. दे गेट सेपरेटेड. Sub step of this, after the DNA fragments have separated on the gel medium, expose that gel medium to alkaline chemical so that all fragments, their hydrogen bonds get broken, and in each fragment, two strands, complementary to two strands, they get separated. Step 5 में क्या करना है? What is to be pressed on the gel medium that is carrying DNA fragments over their separated DNA fragments? उसके ऊपर क्या प्रेस करना पड़ता है रख के? बोलिए. व्हाट इज, हाँ, नाइलॉन क्लॉथ या नाइट्रोसेल्युलोज पेपर का स्ट्रिप, उसको रख के प्रेस किया जाता है so that all the DNA fragments get transferred to the nitrocellulose paper. What this technique is known as?
southern hybridization. Acha, the nitrocellulose paper with this separated DNA fragments, and each fragment where the hydrogen bonds broken and two strands are physically disconnected from each other. Uske upar, step 5, we have to introduce radioactive probes. What do we need to expose them to? तो radioactive probes. अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि मेरे पास ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है जिसमें ACG रिपीट ACGT CAG 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 CCCA, whatever it is. Now, can you make out that how much is the length of the each repeat? Tell me, how much is the length of each repeat? 3 base pair का एक repeat है. Number 1, how many times it is getting repeated over here? कितनी बार रिपीट हो रहा है? पैच ऑफ 3 बेस पेयर रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स. और ऐसा डीएनए में एक जगह पे हो रहा है, ऐसी एक जगह है ये, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसी बहुत सारी जगह पे रिपीट हो रहा है. अब मैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड स्मॉल पैच ऑफ अ डीएनए complementary to the VNTR. Complementary to which one? VNTR. तो ये VNTR है. अब मैं इसके सामने GAC 3 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा पैच, और वो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को मैं रिलीज कर दूं, तो विल इट नॉट, माय मिस्टेक, हाँ, GTC, तो will it not come before this and get complemented and attached over there? हाँ या ना? You understand this? अच्छा, जो artificially synthesized short patch of DNA which is having radioactive nucleotides and it is complementary to VNTR, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव probes. It is, these are, each piece is called as what? Radioactive probes. तो वो जहां जहां पे VNTR है उसको जाके कॉम्प्लीमेंट करके बाइंड कर देगा. ये है हमारा स्टेप 5. हमें पता है कि कौन सा पैच रिपीट हो रहा है वहां पे. वी नो विच पैच इज बीइंग रिपीटेड. सो उस पैच की कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट, ऐसे बहुत सारे यूनिट अगर रिलीज कर दे वहां पे, तो दे ऑल विल गो एंड बाइंड टू विच वन? VNTR carrying strand. Can you make out this? Green is that VNTR probe.
जबकि रेड जो है वो VNTR लेके ही बैठा है। बोलो, क्लियर हो गया आपको? ये VNTR वाले स्ट्रैंड्स थे, उनके साथ हमने ये प्रोब्स को क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री अटैच कर दिया। बोलो, यहां तक क्लियर? अब एक और स्टेप, लास्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप। ऑटो रेडियोग्राफी। हमारे पास जो एक्सरे होता है ना, उसका दूसरा नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। मीन्स एन एक्सरे इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट में से एक्सरे पास करके इमेज लेते हैं तो उसको ऑटो रेडियोग्राफ कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंटेड हाइब्रिडाइज्ड VNTR सीक्वेंसेस, जहां पे VNTR सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री VNTR probes which are radioactive, they have complemented over here, binded over here. इससे क्या होता है कि आप जब इसको एक्सरे इमेज लेते हो ऑब्जर्व करने के लिए, तो जो VNTR वाले जो रेड पैच है, अभी मीन्स डायग्राम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रेड पैच, तो वो जो DNA का एक्चुअल फ्रेगमेंट है जिसके ऊपर VNTRs थी, और ग्रीन पैचेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे बनाए हुए प्रोब्स को, रेडियो एक्टिव प्रोब्स को। जब हम ये करेंगे, एक्सरे इमेज इसका लेंगे, सो एट दैट टाइम तो DNA तो यू वोंट बी एबल टू सी इट क्लियरली, क्लैरिटी नहीं रहेगी DNA के पार्ट, तो वो तो क्लियर दिखेगा नहीं। तो जो VNTR वाला स्ट्रैंड है वो एक्चुअली नहीं दिखेगा, बट इसमें इन फॉर्म ऑफ डार्क पैचेस क्या दिखेगा? VNTR प्रोब्स का पोर्शन दिखेगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है और उसमें से एक्सरे पास नहीं होते, तो वो पार्ट डार्क दिखेगा। अब अब मेरा अगर DNA का प्रोफाइल है, उसका VNTRs अगर जो थे, जितनी बार मैं उनको ऐसे परफॉर्म करूँ ये 6 स्टेप्स, तो उनका VNTR प्रोफाइल ऐसा ही दिखेगा। तो दिस इज हाउ अ पर्सन्स VNTR प्रोफाइल इज प्रिपेयर्ड। बोलो, कैसे प्रिपेयर किया जाता है VNTR प्रोफाइल? उसमें कोई डाउट है आपको? हाँ या ना? अच्छा, अब उसके एप्लीकेशन। लेट्स से दैट मैं क्राइम साइट पे गया और वहां से किसी पर्सन का DNA सैंपल कलेक्ट कर लिया, वो पर्सन जिसने मर्डर किया है वहां पे, उसके हेयर या उसका स्किन, मर्डर होता है, फाइट होती है तो एक दूसरे का खून बहता है, एक दूसरे के बाल नोचते हैं एक दूसरे से, जैसे वहां पे उनका अगर स्वेट गिरा हो या सलाइवा गिरा हो या उनका सीमेन गिरा हो या उनका ब्लड या वजाइना वैसे फ्लूइड गिरा हो या फिर स्किन के सेल्स गिरे हो, एक दूसरे को फाइट के टाइम पे मारते हैं तो बॉडी के स्किन के सेल्स या फिर नाखून में स्किन के सेल्स कलेक्ट हो गए हो, तो उन उन सेल्स में से जो DNA मिलता है वो सैंपल DNA है, हमारा क्राइम साइट से कलेक्टेड हुआ सैंपल DNA। फिर आपको पता चलता है कि आपने समहाउ फाइंड कर लिया कि उस क्राइम साइट पे उस टाइम पे 3 लोग थे। A person was present, B person was present and C person was present। तो आपको कंफर्म करना है कि इन तीनों में से कौन वहां पे प्रेजेंट था। तो तीनों के DNA का प्रोफाइल प्रिपेयर करवाइए, फिर कंपेयर इट विद द सैंपल। आपको किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? सैंपल के साथ। आप कंपेयर करके देखो और बोलो कि
whose DNA profile matches the most with that of the sample collected at the crime site. B. So at least you can prove that the person who was present at the crime site was B person. फिर आप ऐसा ऐसा एविडेंस देते हो कि फॉर एग्जांपल जज को बताते हो कि सर क्रिमिनल साइट पे से ये डीएनए मिला था और हमारे 3 सस्पेक्ट्स में से इसका डीएनए मैच हो रहा है वहां पे, तो फिर फर्दर इंट्रोगेशन के लिए आपको रिमांड मिल सकता है। बाकी का तो पुलिस जानती है कैसे बुलवाना है। बोलिए, पता चला क्या आपको? सेम मैनर, ये क्राइम साइट नहीं है, बट ये कोई डेड बॉडी है, लेट्स से कि कोई डेड बॉडी है। सो लेट्स से दैट आपने एक डेड बॉडी का वीएनटीआर प्रोफाइल बनाया है, आपको पता नहीं है कि वो डेड बॉडी किसका है। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डेड बॉडीज बिकम अन आइडेंटिफाइबल, और बल्क में है डेड बॉडीज सेवरल। जैसे 9/11 करके एक डिजास्टर हुआ था, या फिर ऐसी फायर हो या कुछ जिसमें बहुत सारे लोग मर जाए और डेड बॉडीज अनआइडेंटिफाइड वर्जन में आ जाती है, तो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? तो डेड बॉडी का डीएनए निकाल के वीएनटीआर प्रोफाइल किया जाता है। फिर रिलेटिव्स जो होते हैं, अब रिलेटिव्स में कौन सा, तो अगर हस्बैंड का पॉसिबल डेड बॉडी है तो वो क्या वाइफ का? नो, ब्लड रिलेटिव्स जिसका जेनेटिक रिलेशनशिप, तो जैसे उस पर्सन का ब्रदर या सिस्टर हो, ऐसा कोई जेनेटिक रिलेशनशिप वाला हो, उसका वीएनटीआर प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं। फिर दोनों को मैच करते हैं। ऑफ कोर्स दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट पीपल, तो दे कैन नॉट बी आइडेंटिकल, बट अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं ज्यादा परसेंटेज पे, 85-90 प्लस, तो एटलीस्ट दे आर नॉट of a same persons but they are of close genetic relatives also, वो तो कर सकते हैं। तो उनको पता चल जाएगा कि ये डेड बॉडी इन पर्सन को बिलोंग करता है, इनके फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा। फिर पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में भी हेल्प करता है, और जैसे मदर का ये डीएनए है और ये चाइल्ड का डीएनए, ओके, और ये 3 पॉसिबल पर्सन है जिसमें से किसी एक का डीएनए है ये चाइल्ड में, so one of them is the biological father of this child. So who will be that person? Tell me. Exactly, number 1, isn't it? Because we derive some VNTRs from mother and some VNTRs from father. तो आप मैच करके देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें मदर में से कुछ VNTRs आए हैं और इसके कुछ VNTRs किस में से आए हैं? अरे फादर साइड से आए हैं कुछ VNTRs। So mother and father, we derive VNTRs from both of them. So इससे इश्यू सॉल्व हो जाएगा कि who is the biological father of the same.
So different fields in which the DNA fingerprinting can be helpful. Technique has gone to such an advancement and high level where the technique is further utilized in diagnosis of many genetic diseases and disorders such as sickle cell anemia, Alzheimer, and you know many of them which are because of the genetic mutations. तो उनके स्टडी में भी ये हेल्पफुल रहता है. ऑफ कोर्स एट दिस लेवल यू डोंट नो which way, but you have to understand it is possible. So that is about the DNA fingerprinting, its principle, its 6 steps, technique, and its application. With this, I conclude the chapter. Next lecture onwards, we got to go for another chapter which is related with evolution. Okay. So tell me, any doubt in this particular one, today's lecture? Okay, as you say no, that means you have no problem. Well, with this, we wind up. See you in the next lecture. Till then, goodbye.